Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the fourth chapter in civics. The name of the chapter is Key Elements of a Democratic Government. And under this chapter we were discussing in the previous class one of the most important element of democratic government, that is participation of people. We have seen the most important way through which people participate in the process of government is elections. In every democratic country, there is a provision for election after a fixed period of time. We elect our representatives through elections, and these representatives rule on behalf of the common people, and this is only for a fixed period of time. In case of our country, this is 5 years time, 5 years period, and after the completion of that fixed period, what happens that these representatives have to come back to the people in order to get their vote. And in this way we can say that election is the most important tool through which people participate in the process of government. But what we find that elections are held only once in 5 years or 4 years, whatever is the time fixed by the constitution. In our case it's 5 years, so elections are not a regular phenomena. It happens only once in 5 years in our country. So this participation is not, we can't say ki only if we are participating through elections, then that is sufficient. Actually there are other ways of participation also, like protest. We government has, if government has taken any decision and that decision is not that decision is harming, that decision is harmful for a particular section of the society, then what happens that people of that section start protesting against the decision of the government. People sit on dharnas, they shout slogans, they also do signature campaign, rallies are organized, then strikes are also one of the tools in the hands of the people through which they participate in the government, through which they put pressure on the government to take decisions according to the interest of the common people. And in this regard we have also seen how sometimes it happened in our country that the government has to take back the decision because of protest of the people. So this is participation, and in this participation of the people, what we find ki what is important is our opinion, is our awareness. How do we form our opinion regarding the functioning of the government, and how from where we are getting the knowledge about the functioning of the government, from where we are becoming aware about the functioning of the government. हम कैसे पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? We get it, our source of knowledge is media, है ना? We watch televisions, we read newspapers, and through these we become aware of the decisions and different policies of the government, and then we form our opinion that the decision taken by the government is
good or not, if it is not in favor of or we can say if it is harmful for a particular section of the society, then people start organizing themselves and they start mobilizing themselves. तो इस तरह से वही फिर प्रोटेस्ट और धरनाज एंड रैलीज एंड स्ट्राइक्स का वो सहारा लेते हैं. तो दिस इज we can say that in this participation, which is one of the most important elements of democratic government, the role of media is also very important. And in this regard, it is also important to understand that it's not ki we should when we are taking part in dharnas and rallies and protest march and signature campaign, then only we are participating in the process of the government. Actually, when we are reading a newspaper, when we are watching the news in the television, that is also a type of participation, because through that process we are becoming aware of the functioning of the government, we are forming our opinion. So that is also a kind of participation. Okay, and now we will find ki it's not in our society there are some sections who are disadvantaged. The people who are disadvantaged, वो सेक्शन जिसकी कंडीशन बहुत ही हम कहेंगे कि खराब है. द कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन इज हाईली डिप्लोरेबल. They are called disadvantaged section of society, like we have discussed about this group, like Dalits, tribals, then people of minority communities, जो हमारी सोसाइटी के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले पीपल हैं. दे, देन वुमेन, दीज आर द people who belong to disadvantaged group. ये जो हम जिस disadvantaged group की बात कर रहे हैं उसमें यही groups हैं, Dalits, tribals, minorities and women. These are the main 4 groups. Then poor will also be in this group. So what we find ki it is the disadvantaged group which is highly affected by the decisions of the government, और इनका पार्टिसिपेशन भी बहुत मुश्किल होता है. It is not easy for this section of people to participate through protest and march and signature campaign, because ये disadvantaged section of society है, they are the weaker section of society. और if we want they should participate in the process of the government, it cannot be done on their own, because they are lacking in knowledge, they are lacking in strength, they are lacking in their financial status. तो ये जो कंडीशन उनकी है कि न तो उनके पास नॉलेज होता है, न उनके पास इस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन होती है कि वो प्रोटेस्ट और धरनास को अफोर्ड कर सके. सो व्हाट वी फाइंड कि इस तरह के जो ग्रुप हैं, द ग्रुप विच वी कॉल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप और द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट ग्रुप कैन पार्टिसिपेट ओनली बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट्स. सोशल मूवमेंट्स जो कि सोसाइटी के सेक्शन से रिलेटेड होती है, और जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसी डिसीजन लेती है जिससे कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर वो सोशल मूवमेंट स्टार्ट होती है. लाइक सरदार सरोवर डैम जो था वो जब बन रहा था नर्मदा रिवर पे, at that time what happened that decision of the government was considered to be a very important decision, because of construction of that dam the pace of development will increase in the
रीज़न, है ना, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इरिगेशन के लिए पैसे, इरिगेशन के लिए वाटर मिलेगा। तो काफ़ी उसकी प्रेज की जा रही थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, ये सरदार सरोवर डैम, ठीक है। बट व्हाट वी फाइंड कि डैम का प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था, इससे बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज फुलफिल हो पा रहे थे, बट एट द सेम टाइम देयर वाज अ सेक्शन which was which was affected badly because of this construction of dam, और वो थे हमारे ट्राइबल्स। जो लोग, जिन लोगों को डैम की कंस्ट्रक्शन के कारण अपने ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस होना पड़ रहा था। तो ये इन लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, इनको एक लीडर मिला। इनकी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सरदार सरोवर डैम, दैट पर्टिकुलर ग्रुप वाज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, और अपने ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस होना बहुत इट कॉज लॉट ऑफ ट्रबल एंड पेन टू द पीपल, ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, इकोनॉमिक ट्रबल, सोशल ट्रबल, कल्चरल ट्रबल, हर तरह की ट्रबल वो फेस करेंगे अगर किसी को भी अपने ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस होना पड़े, और वो भी फोर्सफुली। तो इन लोगों को ऑर्गेनाइज इन लोगों ने को किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ मेधा पाटकर। मेधा पाटकर बहुत बड़ी सोशल लीडर है, एनवायरमेंटल लीडर है, और उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, मोबिलाइज किया, जिसको हम सोशल मूवमेंट के नाम से जान रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मूवमेंट कि किस तरह से जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, अगर वो वीकर सेक्शन प्रॉब्लम में आ रही है, if the government is taking such decision which is harmful for a particular weaker section of the society, then what is the need? The need is to organize this weaker section and then mobilize them. It is not possible for people of this group to organize on their own because they are weak. ठीक है, तो ये भी एक पार्टिसिपेशन का तरीका होता है जिसको हम कहेंगे सोशल मूवमेंट्स। जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। Okay, and here you must understand that whenever we talk of democracy, actually democracy is all about participation of people. A democratic government will work according to the need of the people, according to the interest of the people, only if the people are interested in the process of the government. If people are not interested in the process of the government, if people are highly neutral towards their towards the functioning of the government, then in that situation what will happen, even though there may be democratic government formally, but actually this democratic government will not work according to the interest of the people, because people are not paying attention to the functioning of the government. People are very much neutral. They are not doing any kind of protest. They are not doing any kind of dharnas or any kind of movements against the decisions of the government. People are accepting all the decisions of the government happily, not we can't say, मतलब बस people जो है, लोग जो है वो आराम से गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस अब एवरीथिंग इज फाइन, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रहा है उसको हर कोई माना जा रहा है। तो अगर ऐसा हम करते हैं, इफ वी डू लाइक दैट, देन वी आर पेविंग द वे फॉर अनडेमोक्रेटिक रूल। फॉर्मली वो डेमोक्रेटिक होगा, बट वहाँ पर जो रूलर्स होंगे, जो लीडर्स होंगे, दे आर नोइंग दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो वी कैन डू एनीथिंग, है ना। तो अगर इफ वी वांट कि डेमोक्रेसी शुड बी रियल, इफ वी वांट कि डेमोक्रेसी शुड बी मीनिंगफुल, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज दैट वी मस्ट हैव इंटरेस्ट in the activities of the government. We must have the courage to go for protest or rallies or strikes.
so that we can draw the attention of the country towards the problem of a particular section of the society. Okay, तो हम अगर कहीं देख रहे हैं कहीं धरना हो रहा है, कहीं रैली ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो दैट इज नॉट बैड. अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो दीज आर आवर राइट्स, ये हमारे अधिकार हैं और हमें वी मस्ट यूज दीज राइट्स. Then only the government will be in control of the people. If we are not using these rights, then government will go out of control of the people and it will start working arbitrarily. Okay, तो धरना पे बैठना या प्रोटेस्ट करना या रैली निकालना या स्ट्राइक करना, इट्स नॉट बैड, ये जरूरी है. और एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस यू मस्ट बी aware of all these things and don't think that अरे ये लोग तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, स्लोगन्स आउट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं. ये हमें नहीं सोचना है. गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर बोलने की जरूरत पड़ेगी तो हमें वो बोलने के लिए तैयार रहना है, तभी हम अपने डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं, नहीं तो हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी. ओके, तो ये दिस इज अबाउट one of the most important element, that is participation. We have discussed participation. Okay, now what we find ki whenever people are living together there will be conflict. कहीं भी, जहाँ कहीं भी लोग साथ साथ रहते हैं वहाँ पर conflict का आना is quite natural, है ना. we are living in our house, हम अपने घर में रह रहे हैं, वहाँ पर हमारे बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ भी कभी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. तो जब भी पीपल रहें तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना नेचुरल है. तो जो हमारी सोसाइटी है, इन दैट सोसाइटी सो मेनी पीपल आर लिविंग टुगेदर. So we can't think कि there will not be any kind of conflict between people in the society. There will be conflict. Like we have seen the story of Maya Naidu, है ना. साउथ अफ्रीका में जो माया नायडू की स्टोरी हमने देखा, we discussed the conflict. What was the conflict in that story? The conflict was regarding language, है ना. जो साउथ ईस्टर्न टाउनशिप में जो लैंग्वेज बच्चों को कंपल्सरी पढ़ाई जा रही थी, दैट वाज अफ्रीकन लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज, दैट वाज जुलू. तो ये क्या है? दिस इज कॉन्फ्लिक्ट. गवर्नमेंट जो कर रही है, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट डिसीजन and this is the reason for conflict. तो conflict जो होती है वो natural है, ठीक है. जहाँ भी लोग रहेंगे वहाँ conflict आना है. But what is important कि how we are resolving this conflict. हम इस conflict को कैसे solve कर रहे हैं. Like in case of that Hector Peterson, what we find, साउथ अफ्रीका में लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे. दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. they were protesting in a peaceful manner, but what happened? The police started shooting on the mob. तो ये जो तरीका अपनाया गया, the method which was adopted by the government in order to resolve the conflict was undemocratic way of resolving the solution, है ना. तो जब लोग, when people are protesting peacefully and the government is starting firing on the mob, this is not the correct way of resolving the problems. ठीक है. प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ वी सी our country India, what we find in our country, diversity is one of the most important feature of our country. In our country, people belonging to different culture, religion, regions, economic backgrounds, all are living together,
है ना. And when people of such diverse background are living together, there will be conflict, है ना. और suppose करो, we just imagining a situation in which people are living together and people have a class of interest, and because of this class of interest conflict is there. अब जब अगर लोगों को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया जाए, दे आर फ्री टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट, अपना मैटर को अपने सॉल्व करिए आप, जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे. द सबसे जो ईजीएस्ट वे हमारे लिए होगा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, वो होगा वायलेंस, मारपीट करना शुरू. इट हैपन्स इन आवर होम्स ऑल्सो, हमारे घर में भी ये होता है. अगर पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, अगर बच्चे अकेले हैं, हाँ, किसी बात पे बच्चों की लड़ाई हुई, वो लड़ाई कहाँ तक जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है, होती है ना. इट्स नेचुरल, ये ह्यूमन नेचर है, हम ऐसे ही करते हैं. तो अगर सोसाइटी में भी सपोज जो डिफरेंट ग्रुप्स रह रहे हैं, उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो उनको सेटल करना है खुद ही उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो क्या होगा, वो हमेशा वायलेंस की तरफ ही जाएंगे, हमेशा वायलेंस होगा. तो अगर वायलेंस होता है तो क्या होगा, दिस वायलेंस विल कॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड टेंशन, है ना. जो भी लोग रह रहे हैं एक उस एरिया में जहाँ पे वायलेंस अगर इरप्ट कर जाता है, तो दैट वायलेंस विल कॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड टेंशन. तो ये हम वी कांट से कि पीपल शुड रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट ऑन देयर ओन. अगर पीपल को हम छोड़ेंगे कि वो अपने आप पे उनको रिजॉल्व करना है, तो दैट विल लीड टू वायलेंस, and that violence will lead to the creation of an atmosphere of fear and tension. तो इसके लिए किसका इन्वॉल्वमेंट आता है, गवर्नमेंट needs to resolve the conflicts in a peaceful manner. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करेगी. ओके, so what we find कि हमारी सोसाइटी, in our society we have so many conflicts, है ना. और now we will see through examples कि how the government resolved these conflicts in a peaceful manner. Okay, like we have people of different religion, है ना. People belonging to different religion are living together in our country, and many times festivals are celebrated by the people, and during these festivals what we find ki religious processions, in some festivals religious processions are also taken out. अब ये जो रिलीजियस प्रोसेशन होता है किसी किसी फेस्टिवल्स में, उसके लिए क्या होती है कि एक उनकी जिस रास्ते से वो रिलीजियस प्रोसेशन निकलेगा, दैट रूट मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट. जिस रूट को फॉलो किया जा रहा है रिलीजियस प्रोसेशन निकालने के लिए, दैट रूट मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट. लाइक जो प्रोसेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेस्टिवल के रिगार्डिंग है, और जो रूट उन्होंने डिसाइड किया है, जहाँ से वो प्रोसेशन निकालने का डिसाइड किया है, वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों का जगह है, और वहाँ से वो निकल रही है प्रोसेशन. तो क्या होगा, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट. इट्स नॉट कि कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, बट इस बात की पॉसिबिलिटी होती है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि दिस प्रोसेशन में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. तो इन दिस सिचुएशन अगर इस तरह का कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकलना है, तो व्हाट हैपेंस दैट द गवर्नमेंट play an important role in this situation. And government में यहाँ पर हम किससे मीन कर रहे हैं, we are talking about police. जो पुलिस होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो भी रिलीजियस कम्युनिटी है, जिसका भी रिलीजियस प्रोसेशन निकलना है, उनके लीडर्स से वो मिलती है,
देन वो एक सॉल्यूशन पे पहुंचने का एफर्ट करती है कि जो रूट डिसाइड किया जाए वो ऐसा रूट हो कि जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए। तो वो उनको कन्विंस करती है, उनसे बातचीत करती है, एंड देन एक रूट जो है वो डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से टाइमिंग डिसाइड की जाती है कि रिलीजियस प्रोसेशन कब निकाला जाएगा, है ना। तो कई बार होता है जैसे किसी एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसका फेस्टिवल के रिगार्डिंग कोई रिलीजियस प्रोसेसन निकली हुई है, उसमें किसी दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें वायलेंस आ जाए, जैसे कि दूसरी कम्युनिटी के लोग उस पर स्टोन थ्रो करने लगते हैं, दे ट्राई टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन। तो इस तरह में क्या होता है कि ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस कि वो देखे कि जो प्रोसेशन का रूट क्या डिसाइड हुआ है, टाइमिंग क्या डिसाइड हुआ है, एवरीथिंग इज डन थ्रू नेगोशिएशंस, बातचीत करके ये सारा कुछ डिसाइड किया जाता है। और पुलिस वहाँ पे पूरी डिप्लॉयड होती है ताकि किसी भी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, पीसफुली वो प्रोसेशन चला जाए। तो ये रिलीजन का जो मैटर होता है इसमें हमारा बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, और छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो इस समय में ऐसे मौके पर अगर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए पुलिस एक्टिवली काम नहीं करती है तो एक छोटा सा इंसिडेंट भी एक बहुत बड़े राइट का फॉर्म ले सकता है, जिसमें कई सारे लोगों की जान जा सकती है। और ऐसा कभी कभी हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है कि हमारी कंट्री में इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हुए। वी हैव फेस्ड दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सारा कुछ पीसफुली करे, एंड गवर्नमेंट स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट पुलिस, ठीक है। इसी तरह से एक और वन मोर रीजन इज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज रिवर्स। रिवर जो होते हैं वो कई बार दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनते हैं, क्योंकि कई बार व्हाट वी फाइंड कि कुछ ऐसे रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन होता है एक स्टेट में, देन वो दूसरे स्टेट में फ्लो करती हुई तीसरे स्टेट में जाकर के फिर वो फ्लो करती है और तब जाकर के वो मिलती है सी में मिल जाती है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई भी रिवर होता है जो कि 2-3 स्टेट को क्रॉस कर रहा होता है, तो दैट द शेयरिंग ऑफ दैट रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स विल मे बिकम एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी ये एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू बन जाता है कि उनके बीच में कैसे रिवर वाटर की शेयरिंग होगी, क्योंकि जो रिवर है वो इट इज़ मूविंग फ्रॉम मोर देन वन स्टेट, है ना। तो इस तरह का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमारी कंट्री में, दैट इज रिगार्डिंग द रिवर कावेरी। कावेरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया। और ये जो कावेरी वाटर जिसको हम कहते हैं कि कावेरी रिवर वाटर के जो शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट हुआ है, दैट इज बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इस डिस्प्यूट में 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं और वो हैं कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कर्नाटक और तमिलनाडु है, इसमें अगर इफ यू सी द पोजीशन ऑफ दीज 2 स्टेट्स यू विल फाइंड कि कर्नाटका जो है वो ऊपर है और तमिलनाडु नीचे है। अब ये जो रिवर है वो कर्नाटक होती हुई तमिलनाडु पहुंचती है, ठीक है। अब कर्नाटक में क्या किया है कि कर्नाटक में डैम बना लिया गया है इसी रिवर पे, और उस डैम का नाम है कृष्णा राजा सागर डैम। तो ये डैम जो कर्नाटक में बनाया गया है ताकि जो वाटर है कावेरी रिवर का, उस वाटर को इरिगेशन के लिए यूज किया जा सके, एंड देन ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो कृष्णा सागर डैम में, वहाँ पर कृष्णा राजा सागर डैम जो है वहाँ पर पानी जो है वो रुकता है, यूज होता है। अब क्या होता है कि
जो पानी नीचे आ रही है यानी तमिलनाडु में आ रही है वहाँ पर वो पानी कम हो जाता है, क्योंकि डैम में पानी को रोक लिया गया, वहाँ पर यूज़ किया गया। तो इस तरह से तमिलनाडु को प्रॉब्लम्स आती है। और तमिलनाडु ने भी एक डैम बनाया है जिसका नाम है मेट्टूर डैम। तो उस मेट्टूर डैम इसलिए बनाया है ताकि उसको इरिगेशन के पर्पज से यूज़ किया जा सके। तो ये जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनके बीच में बहुत लंबा डिस्प्यूट कॉज हुआ है। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास।